નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું ગુજરાત ન્યૂઝ પર. સમાચારોની સાથે હું છું અજયસિંહ. દ્વારકામાં કોંગ્રેસની ચિંતન શિબિર ચાલી રહી છે. 3 દિવસની આ ચિંતન શિબિરના બીજા દિવસે રાહુલ ગાંધી હાજરી આપવા દ્વારકા પહોંચ્યા હતા. ચિંતન શિબિરમાં હાજરી આપતા પહેલા રાહુલે ભગવાન દ્વારકાધીશના દર્શન કર્યા હતા અને શીશ ઝુકાવી ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ સત્તા હાંસલ કરે તેવા આશીર્વાદ માંગ્યા હતા. બાદમાં ચિંતન શિબિરમાં 4 કલાક સંબોધન દરમિયાન રાહુલે ભાજપ પર અનેક પ્રહારો કર્યા હતા અને ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ ક્યારેય હાર નહીં માને તથા આગામી 2022ની આવનારી ચૂંટણીમાં કોઈ સમસ્યા છે જ નહીં, આ ચૂંટણી આપણે જીતી ચૂક્યા છીએ તેવો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો. ત્યારે રાહુલની આ મુલાકાતના પરિણામો આગામી ચૂંટણીમાં જોવા મળશે કે કેમ તે જોવું રહ્યું. દ્વારકામાં કોંગ્રેસની ચિંતન શિબિર યોજાઈ રહી છે. ત્યારે આજે કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી દ્વારકા આવી પહોંચ્યા હતા. જામનગર એરપોર્ટ પર રાહુલ ગાંધીનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. જે બાદ રાહુલ ગાંધી દ્વારકાધીશ ભગવાનના દર્શન કરવા માટે પહોંચ્યા હતા. દ્વારકાધીશ ભગવાનના મંદિરના પ્રવેશદ્વાર પહેલા ભગવાન દ્વારકાધીશની ધજા માથે ચડાવી રાહુલ ગાંધીએ પ્રવેશ કર્યો હતો. ભગવાન દ્વારકાધીશની ધજાની પૂજા વિધિ અને પાદુકા પૂજન કર્યા બાદ રાહુલ ગાંધી દ્વારકાધીશના દર્શન કરી શીશ ઝુકાવીને ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસની ચાલી રહેલી ચિંતન શિબિરમાં ઉપસ્થિત રહેવા માટે રવાના થયા હતા. ઉલ્લેખનીય છે કે જામનગર એરપોર્ટ પર રાહુલ ગાંધીનું સવારે 11:30 વાગે ધારાસભ્ય અને શહેર પ્રમુખ દ્વારા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનો ફોટો આપી સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. જે બાદ રાહુલ ગાંધી ભગવાન દ્વારકાધીશના દર્શન કરવા માટે દ્વારકા પહોંચ્યા હતા. કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ દ્વારકાધીશ ભગવાનના મંદિરની પ્રવેશદ્વાર પહેલા ભગવાન દ્વારકાધીશની ધજા માથે ચડાવી મંદિરમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. ત્યારબાદ ભગવાન દ્વારકાધીશની ધજાની પૂજા વિધિ તથા પાદુકા પૂજન કર્યા બાદ દ્વારકાધીશના દર્શન કરી શીશ ઝુકાવીને ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસની બીજા દિવસમાં ચાલી રહેલી ચિંતન શિબિરમાં ઉપસ્થિત રહેવા માટે પહોંચ્યા હતા. કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી દ્વારકા પહોંચ્યા ત્યારે ભાતીગળ સંસ્કૃતિની રાસ મંડળ દ્વારા ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. ભગવાન દ્વારકાધીશને શીશ ઝુકાવી ચિંતન શિબિરમાં હાજરી આપી હતી. આ તકે પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ ઠાકોર, વિધાનસભાના વિપક્ષી નેતા સુખરામ રાઠવા સહિત તમામ કોંગ્રેસના આગેવાનોએ ભગવાન દ્વારકાધીશના નમન કરી પૂજા વિધિ કરી ત્રિદિવસીય શિબિરનો શુભારંભ કરાવ્યો હતો. બાદમાં રાહુલ ગાંધીએ કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય, પ્રદેશ અધ્યક્ષ, રાજ્યસભાના સાંસદ સહિત કોંગ્રેસના નેતાઓને માર્ગદર્શન આપ્યું હતું. गुजरात आकर जब भी मैं यहाँ आता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है और कुछ ना कुछ हर बार कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है. आप यूनिक तरीके से काम करते हो. गुजरात ने सिर्फ हमें नहीं, कांग्रेस पार्टी को तो गांधी जी दिए, रास्ता दिखाया, मगर गुजरात ने ये जो सोच है शायद आज गुजरात के लोगों को भी नहीं मालूम कि आपने कहां कहां तक इसको फैला दिया. नहीं, आपको नहीं मालूम, मैं आपको बताता हूं. नाइनटीज की बात है. मैं 19-20 साल का था उस समय, और मैं ये कांग्रेस पार्टी से नहीं कह रहा हूं, मैं गुजरात के हर युवा से कह रहा हूं, आप सबको ये सुनना चाहिए. ये भाषण इनके लिए है मगर आपके लिए भी है. मैं गया साउथ अफ्रीका. आप लोग अभी कहा किसी ने कि थोड़ी मायूसी है, तो उसको मिटाने के लिए मैं ये आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं. मैं जानता हूं कांग्रेस पार्टी में मायूसी कैसे मिटती है, समझता हूं. तो मैं गया साउथ अफ्रीका. वहां पे सोनिया जी थी, प्रियंका थी, मैं था. पापा के असैसिनेशन के बाद मंडेला जी ने हमें साउथ अफ्रीका बुलाया था. साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड की सरकार थी उसको हटा दिया गया था.
तो मंडेला जी ने हमें बताया कि थोड़ा बता रहे थे, लड़ाई के बारे में बता रहे थे, और उन्होंने बताया कि मैं 26 साल जेल में रहा। 26 साल मुझे वो तंग करते थे कंटिन्यूअस, मतलब ये नहीं कि 2 साल अंदर फिर 2 साल बाहर, 26 साल डायरेक्ट सीधा खट, और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में 7-8 साल। तो मैं सुबह उठता था और दिन भर जेल में रहता था। तो मैंने कहा कि जेल में आप इतने साल रहे, आप अकेले रहे, आपको शक्ति कहां से मिली? मुझे कहते मैं तो अकेला था ही नहीं। मैंने कहा आप अकेले नहीं थे। आपने कहा आप तो सॉलिटरी में थे। सॉलिटरी में तो था। तो फिर मैंने कहा कैसे हो सकता है, आप सॉलिटरी में थे और अकेले थे? अकेले नहीं थे। कहते नहीं, मेरे साथ सॉलिटरी जेल में महात्मा गांधी बैठे थे। तो देखिए यहां पे गांधी जी की फोटो है। साउथ अफ्रीका की सरकार को गिरा दिया। साउथ अफ्रीका की सरकार को जाके लुढ़का दिया, और आप मुझे कह रहे हो कि गुजरात की सरकार को नहीं लुढ़का सकते। पिछली बार मैं आया यहां, हमारे जो चलो सीनियर नेता कह लो, उन्होंने मुझे कहा पहली मीटिंग में, बहुत मुश्किल चुनाव है। बोला नहीं मैंने कुछ, बहुत मुश्किल लड़ाई है। ठीक है, कितनी सीटें आएंगी? 40-45 सीट आएंगी पक्का। हाँ, 40-45 सीट आएंगी। चुनाव चलता गया, वही नेता मेरे पास आए, कहते हैं माहौल तो बन रहा है, माहौल तो बन रहा है, चेंज तो आ रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। और अंत में आपने 12 कहा, हम 6 सीटों से चुनाव हारे, 7 सीटों से। और उस टाइम जो हालत थी मैंने देखी, इस टाइम जो हालत है मुझे दिख रही है। तो ये जो आपका चुनाव है ना, ये आपके माइंड में कंफ्यूजन है, ये आपका जीता हुआ चुनाव है। चुनाव खत्म हो गया है, आप लोग जीत गए हो। बस आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो। मैं समझता हूं क्यों, क्योंकि अगर मैं आप जैसा 25 साल के लिए हर रोज यहां पे बीजेपी के सामने होता, तो मेरी भी कॉन्फिडेंस पे थोड़ा धक्का पड़ता, क्यों नहीं? मगर मैं बाहर से आया हूं, दिल्ली से आया हूं, तो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर मानो मुझे। पिछली बार भी आया था और मैंने आपसे कहा था कि देखो भैया, ये चुनाव जीता जा सकता है। और मैं आपको यहां कह रहा हूं कि ये चुनाव आप लोग जीत गए हो। बट बस अब आपको उस बात को एक्सेप्ट करना है। अब गुजरात की जनता आपके ओर देख रही है। आप सोच रहे हो कि आप लोग बीजेपी से तंग हो। जितना आपका नुकसान किया है उससे 10 गुना ज्यादा बीजेपी ने गुजरात की जनता का नुकसान किया है। कहते हैं गुजरात मॉडल है, ठीक है, गुजरात मॉडल है, तो गुजरात मॉडल में गैस सिलेंडर नहीं थे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे। गुजरात मॉडल में वेंटिलेटर नहीं थे।
मैंने अपनी आंखों से देखा, सड़क पे, हॉस्पिटल के सामने, गाड़ी के अंदर लोग मर रहे थे। तो ये जो बीजेपी की राजनीति है, ये गुजरात का नुकसान कर रही है। बेरोजगारी, जो आपकी स्ट्रेंथ है, गुजरात की स्ट्रेंथ क्या है बताओ मुझे। मैंने आपको सच्चाई की बात बोली, बताओ क्या स्ट्रेंथ है। बिजनेस, बिजनेस में किस प्रकार का बिजनेस? छोटे, स्मॉल और मीडियम, ये गुजरात की स्ट्रेंथ है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस को नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? हाँ, खत्म कर दिया। जीएसटी, नोटबंदी, कोरोना के समय उनके जो एक्शंस थे, उन्होंने गुजरात की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया, बैकबोन को तोड़ दिया। और गुजरात इस बात को समझ रहा है। ये आप मत सोचिए कि गुजरात को ये बात समझ नहीं आ रही है। गुजरात देख रहा है कि हमारी स्ट्रेंथ होती थी स्मॉल मीडियम बिजनेस, हमारी स्ट्रेंथ होती थी इनोवेशन, हमारी स्ट्रेंथ होती थी देश को रास्ता दिखाने की, सब उड़ा दिया। 3-4 लोग गुजरात को चलाते हैं, पूरा का पूरा पावर सेंट्रलाइज कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है? अब मैंने आपको कहा कि आपके सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। प्रॉब्लम क्या है? मैं देखिए साफ बोलता हूं और मैं गुजरात की जनता के सामने बोल रहा हूं। तो प्रॉब्लम क्या है? अपॉर्चुनिटी है बीजेपी एक साइड, दूसरी साइड कांग्रेस पार्टी। प्रॉब्लम क्या है? नहीं, जोर से बोलिए। हाँ, प्रॉब्लम यह है कि जब गुजरात की जनता कांग्रेस की ओर देखती है तो उनको क्लियरली कांग्रेस क्या करना चाहती है, उसको कैसे करना चाहती है और उसको कौन लोग करेंगे, वो पहचान नहीं पा रहे। वो हमारे ओर देखते हैं, कहते हैं यार कांग्रेस पार्टी को जिताना तो चाहते हैं हम, मीडिया उनके साइड है तो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। पूरा मीडिया उनके बारे में बोलता है, हमारी बुराई करता है 24 घंटे। तो वो कंफ्यूजन हमें क्लियर करना है। कांग्रेस क्या करेगी, कैसे करेगी और कांग्रेस पार्टी में कौन कौन लोग इस काम को पूरा करके दिखा देंगे। अब इसमें दूसरा सवाल उठता है, कंफ्यूजन कहां से आता है? कंफ्यूजन एक बार फिर सच्चाई की ओर चले जाते हैं, महात्मा गांधी की ओर चले जाते हैं, कृष्ण भगवान की ओर चले जाते हैं। करता कौन है, बोलता कौन है, इसमें डिस्कनेक्ट है कांग्रेस पार्टी में। एक तरफ वो लोग जो 24 घंटा लगे रहते हैं, जमीन से जुड़े हैं, बीजेपी से लड़ते हैं, लाठी खाते हैं, और दूसरी तरफ बहुत सारे लोग जो एसी में बैठते हैं, मौज करते हैं,
बोलते हैं, लंबे लंबे भाषण देते हैं। अब मेरा भी ज्यादा लंबा हो रहा है। तो ये क्लैरिटी हमें लानी है। गुजरात के लोगों को हमें दिखाना है, भैया देखो इस साइड लिस्ट है कांग्रेस पार्टी की, ये लोग काम के लोग हैं, ये लोग जमीनी लोग हैं, ये लड़ जाएंगे, ये गुजरात को रास्ता दिखा देंगे और करके दिखा देंगे। और इस तरफ ये लोग हैं, ये डिस्टर्ब करते हैं, बीजेपी इनको ले जाइए। आपको और कौरव चाहिए, उठा के ले जाइए, जितने चाहिए लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, हमें नहीं चाहिए। हम आपको तोहफा देते हैं, ले जाओ उठा के। हमें कांग्रेस का जो खून है, डीएनए जो है, वो चाहिए। और मैं आपको बताऊं, सच बताऊं तो कांग्रेस पार्टी को बदलने के लिए, यहां पे मतलब तूफान लाने के लिए 25-30 लोगों की जरूरत है। 100, 200, 500, 1000 की नहीं। अगर आप में से 25 लोग मन बना लो कि क्यों भैया अब ना हम बीजेपी को यहां से उखाड़ के उड़ा के आउट कर देंगे, 25 लोग, मुझे 26 नहीं चाहिए। और उसको भी मैं डेवलप कर सकता हूं, मुझे 25 भी नहीं चाहिए, 5 चाहिए। 5 लोग मुझे मिल जाएं और उन 5 लोगों को 5 लोग मिल जाएं, काम हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है? अगले 6 महीने में, 1 साल में, कितना समय है इलेक्शन है, 8 महीने क्या करना है? हमें खोजना है इन्हीं लोगों में से। ठाकुर जी, आपका काम क्या है? आपका काम इस भीड़ में से वो 25, 30, 40 लोग निकालने हैं और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी की शक्ति, सपोर्ट उनको देना है। और मैं आपको स्टेज से कह रहा हूं, आपने कहा हम हाथ जोड़ लेंगे, पैर पकड़ लेंगे, कोई जरूरत नहीं है ना। ये भैया पैर पकड़ना, हाथ जोड़ना, वो बीजेपी का काम है, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो काम करेगा उसको आप आगे बढ़ाइए, जो काम नहीं कर रहा है उसको आप साइड में कर दीजिए। और मैं जानता हूं कांग्रेस पार्टी के वो भी लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने देखा है, वो भी लोग हैं जो एसी में बैठते हैं। आपने ये लाइन बनानी शुरू कर दी ना, वो भी उस दूसरी लाइन में घुस जाएंगे, टाइम नहीं लगेगा, वो सब पहली लाइन में घुस पड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी में वो एकदम आएंगे। तो आपका काम 2 लाइन बनाने का है और फिर आप मजा देखना, ये सब के सब एक लाइन में घुस जाएंगे। और जो नहीं घुसेंगे हैं उनको आप अच्छा सा पैकेज बना के बीजेपी के घर पहुंचा दीजिए। तो गुजरात की जनता, गुजरात के युवाओं से भी 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। ये जो संगठन है जिसको हम कांग्रेस पार्टी कहते हैं, ये आप सबका संगठन है, ये गुजरात के युवाओं का संगठन है, ये गुजरात की मजदूरों का, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वालों का संगठन है। और आप लोगों को इस संगठन को संभालने का काम करना पड़ेगा। यहां टीम बैठी है, मगर ये जो साइड वाले दरवाजे इनको आप खोल दीजिए। गुजरात के पास दुनिया से सबसे ज्यादा टैलेंट है, नंबर 1 तो वो है। और मतलब लिस्ट है, किसी भी देश में चले जाइए, हिंदुस्तान को छोड़िए, अमेरिका चले जाइए, जापान चले जाइएगा, आपको वहां पे गुजराती मिल जाएगा जो अपना वहां पे मतलब काम कर रहा है। और
दुनिया के सब गुजराती देख रहे हैं गुजरात की ओर, कह रहे हैं भैया ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। हमारी जो स्ट्रेंथ थी उसे वीकनेस बना दिया। तो मिलकर आपको और गुजरात के युवाओं को, गुजरात की जनता को, गुजरात के एनआरआईज को गुजरात के लिए एक नया विजन बनाना पड़ेगा, रास्ता दिखाना पड़ेगा। अगर आप जाएंगे गुजरात की जनता के पास और कहेंगे भैया हमें सत्ता दे दो, गुजरात की जनता कहेगी नहीं भैया। अगर आप कहेंगे देखिए गुजरात के लिए हम ये विजन लाए हैं, गुजरात को हम इस प्रकार से बदलेंगे, गुजरात के आदिवासियों के लिए हम ये करके दिखाएंगे, गुजरात के छोटे स्मॉल मीडियम साइज इंडस्ट्री के लिए हम ये करके दिखाएंगे, गुजरात के डायमंड इंडस्ट्री के लिए हम ये करके दिखाएंगे, गुजरात के जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं हम इसको इस प्रकार से बदलेंगे। अगर आपने ये प्लान करके गुजरात को दिखा दिया, और वो जो मैंने 25 लोगों की बात की, आपने दूसरी तरफ वो 25 चेहरे लगा दिए, ये आपका इलेक्शन गया, हो गया काम। और मैं तो हूं यहां। आप देखिए मैं आया, एक आप बुरी आदत मुझे दे दी आप लोगों ने। मैं आया, हर बार आता हूं, अब आदत लग गई है। नॉर्मली मैं क्या खाता हूं, लंच पे मेरा बहुत छोटा चलता है, बहुत कम खाता हूं, और मैं नॉर्मली फ्राइड तला हुआ खाना नहीं खाता हूं, मीठा कम खाता हूं। जब मैं गुजरात आता हूं पता नहीं क्या हो जाता है, पता नहीं क्या कर देते हो आप लोग। मैं आज मंदिर से निकला, वहां पे मुझे रेस्टोरेंट दिख गया, मैंने कहा चलो भैया उसमें जाना है। और नॉर्मली मैं बड़ी थाली रख दिया आपने मेरे सामने, वहां पे मतलब 2-3 मैंने पराठे खा लिए, रोटी पराठे पता नहीं क्या क्या खिला दिया आपने, 3-4 सब्जी। तो मुझे यहाँ खाना भी अच्छा लगता है, गुजरात के लोग भी अच्छे लगते हैं, आपसे सीखने को मिलता है। और मेरे जो गुरु हैं, गुरु थे और रहेंगे, महात्मा गांधी जी, जिन्होंने मुझे राजनीति में सिखाया है, वो आपके हैं, वो आपने मुझे दिए, आपने देश को दिए। तो ये रिश्ता है, इस रिश्ते को मैं गहरा करना चाहता हूं, आपसे सीखना चाहता हूं। तो जब भी आप चाहो, जहां भी आप मुझे ले जाना चाहो, बस बुलाने की जरूरत है, मैं हाजिर हो जाऊंगा। કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ આગામી ચૂંટણીની રણનીતિ ઘડે તે પહેલા જગત મંદિર દ્વારકાધીશના દર્શન કરી આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા। બાદમાં રાહુલ ગાંધી ચિંતન શિબિરમાં પહોંચી કોંગ્રેસના કાર્યકરોને 2022 વિધાનસભા ચૂંટણીની તૈયારીઓ અંગે માર્ગદર્શન આપ્યું હતું। ઉલ્લેખનીય છે કે આની પહેલા વર્ષ 2017માં પણ રાહુલ ગાંધીએ દ્વારકાધીશને શીશ ઝુકાવી પ્રચાર શરૂ કર્યો હતો। કોંગ્રેસ સંગઠન સામેના પડકારો ક્યાં છે તેના પર પણ આ શિબિર દરમિયાન મંથન કરવામાં આવ્યું હતું। બપોરે 1 કલાકે દ્વારકા સ્થિત આહિર સમાજવાડી ખાતે ચિંતન શિબિરમાં હાજરી આપી હતી। આ શિબિરમાં 400 જેટલા આગેવાનો હોદ્દેદારો સામેલ થયા હતા। શિબિરને સંબોધતા કોંગ્રેસ પ્રભારી ડોક્ટર રઘુ શર્માએ જણાવ્યું હતું કે શિબિરમાં જે મુદ્દાની ચર્ચા થશે તેના આધારે પાર્ટીનું વિઝન નક્કી થશે। ભાજપ ઇવેન્ટ રેટ મેનેજમેન્ટ કરતી પાર્ટી છે। ભાજપ સરકારે 4 વર્ષ બાદ ગુજરાતમાં મંત્રીમંડળ કેમ બદલ્યું? નવા ચહેરા લાવ્યા પણ રિમોટ કંટ્રોલ આપી દીધું। ત્યારબાદ રાહુલ ગાંધીએ દ્વારિકા નગરીમાં શ્રીકૃષ્ણને યાદ કરી પક્ષ છોડનારાને કૌરવ ગણાવ્યા હતા અને ગુજરાત કોંગ્રેસને બચાવવા 25-30 લોકોની જ જરૂર છે। તો અંતમાં 2022ની ચૂંટણી અંગે રાહુલ ગાંધીએ જણાવ્યું હતું કે 2022ની આવનારી આ ચૂંટણી કોઈ સમસ્યા છે જ નહીં। આ ચૂંટણી આપણે જીતી ચૂક્યા છીએ તેવો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો। બ્યુરો ઓફિસ, ગુજરાત ન્યૂઝ, રાજકોટ। દ્વારકામાં કોંગ્રેસની ચિંતન શિબિર ચાલી રહી છે ને 3 દિવસના ચિંતન શિબિરના બીજા દિવસે રાહુલ ગાંધી હાજરી આપવા દ્વારકા પહોંચ્યા હતા અને આગામી ચૂંટણીને લઈને અનેક પ્રકારનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો। ત્યારે આવનારો સમય જ બતાવશે
કે કયા પ્રકારની ચૂંટણીની રણનીતિ અને કયા પ્રકારનો સમય રહેશે. આપ જોતા રહો ગુજરાત ન્યૂઝ, સત્યની સાથે. નમસ્કાર.